Hello everyone. First of all, warm welcome to all of you in Darvix family. As you know that the market scenarios are not good from last 4 to 6 months, and most people start getting frustrated and leaving the market. Earlier we have the budget chows, then this tariff issue started, and in such scenarios you guys choose to learn. It's too difficult to take such steps when the people are frustrated. So first of all, a big salute to all of you and thank you guys. Uh, Now we are going to first discuss about what we are going to cover in the this syllabus. Now you all are familiar with the name of Nicholas Davos, okay, the man who made the $2 million in the market in 1970s using his own observations, own setup without noise. So we are going to first discuss about what is this Darwex box strategy and whether it's working in this market scenarios or not. If not, then what we can add in to make it more accurate. So let me first discuss about what we are going to cover in module 1 that today. Darwex box introduction and the application of this. Then we will we are going to combine Darwex box with the volume combination for the appropriate setup. दैन वी विल सी एक आपने देखा होगा ट्वीट में मैं कई बार लिखता हूँ चाट मसाला टाइप तो दिस इज व्हाट द कॉम्बिनेशन आई एम यूजिंग डार्वेक्स बॉक्स प्लस वॉल्यूम कॉम्बिनेशन प्लस ई एम आर क्या होता है वो मैं अपन डिस्कस करेंगे एंड आर एस आई ठीक है तो वी आर गोइंग टू यूज दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर थिंग्स टुगेदर फॉर more accuracy. Then I'm going to discuss about the candlestick pattern cheat code. मतलब you don't need to remember the candlestick patterns. We have some homemade patterns जो बहुत देसी टाइप के patterns है that I'm going to discuss with you and we will work on it. How to spot big runner stocks. तो big runner up stocks को कैसे आपको stock करना है in early phase में वो हम बात करेंगे. In module 1 we are going to discuss about the technical part only and in module 2 the fundamental will come. Okay. Then stock selection through screeners, the screeners which I shared with you, then we will see that. My stock selection criteria with time frame analysis कि stock selection का criteria किस तरीके से आपको देखना है वो हम इसमें देखेंगे. Then we will do sector analysis and macros कि macros how the economic macros works and उसका impact जो market में आता है तो क्या क्या चीज़ें आपको macros में देखनी है. Then in module 2 we are going to discuss about accumulation and distribution phase. इसको stage analysis भी बोला जाता है. वन वर्कऑफ मॉडल एंड वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न क्या होता है हाउ टू फाइंड आउट द टारगेट एंड स्टॉप लॉस यूजिंग द फीबो पैटर्न then entry and exit will come in the module 2 तो after module 1 just practice what we learn in module 1 entry and exit का भी आप थोड़ा मत पूछना it's going to be a little bit complex so that's why it's the part of module 2. Then we will talk about the allocation size, how much your allocation should be in a one single stock and fundamental cheat point. In fundamental cheat point, as most of you are the professionals, you don't have time to read all the balance sheet and everything. So what are the main points and which you have to focus to find out whether the stock or the company is good or not. देन विजुअलाइजेशन आपने ये कई बार मेरे ट्वीट्स में देखा होगा कि यू हैव टू विजुअलाइज योर ओन कैंडल ऑफ मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि ये कैंडल बन सकती है तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू ड्रॉ दैट कैंडल्स ऑन द चार्ट एंड विद द रेफरेंस ऑफ दैट कैंडल हाउ द stock is performing or not you have to compare that thing so that will come into this part. Then in module 3 we will discuss about the relative strength index RSI. Although we are going to use RSI in the module 1 but in RSI in module 1 we are going to see ओनली द एप्लीकेशन पार्ट ये RSI होता क्या है व्हाट इज दस डाइवर्जेंस ये काम कैसे करता है हाउ टू फाइंड आउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टॉप और बॉटम यूजिंग द RSI. दिस विल कम इनटू द मॉड्यूल 3. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे पता करना है यूजिंग RSI एंड द प्राइस एक्शन एंड द सप्लाई डिमांड फैक्टर as you most of the time you start spending in the market then you will feel that these lines are nothing actually everything is just price and action volumes कि how the price is मतलब stock price is behaving in the market according to the overall market that will give you the good idea so for that reason this will be kept in the last module and we will discuss about the stock scenarios. So I'm not going to discuss much in detail about the Darwin's theory, you क्या थे, कैसे किया था, that you can read from the book or that is not much required. The application part I will directly teach you through the help of charts. Okay.
So this is our setup. I hope that your setup is clear. I have shared with the Sumit infusion of Darvex Watt with EMA. तो यहाँ पे ये एक इंडिकेटर है. इसके अंदर I have changed this black line. ये आपकी येलो आ रहा होगा, ये 20. तो you can change it to the black. Okay. So this will form like this, a box type structure, green and red, and then this five lines, 10, 20, 50, 100 and 200. And you can see the volume, and volume में आपको एक line दिख रही होगी, that is a moving average line. This is actually 9. इसका आप setting देखेंगे तो you can do the setting of 9. Okay. So that means कि 9 days का जो average होगा volume का, ये line आपको ये बताएगी. तो if at any specific day the volume is higher than the average of last 9 days, so this will come start popping up from this line, so it will show that some accumulation is going on in the stock. Actually, and this is a RSI setting. So in RSI setting, we are using RSI 14, and style setting is common. ये आपके शायद yellow color का आएगा, तो you can change it to the black. So these are the only three indicators we are going to use throughout this journey. And in free version, they will allow you only two, and for that reason, EMA and Darvex I have combined. But to make you understand, I'm going to use it separately like this. I'm hiding this, and I will use this and this. Okay. Uh, so it will similar to the same thing what you are using, but sometime I need to hide one thing to make you understand. So for that reason, I am using this. Okay. So let me first discuss about this box. So I'm hiding this line. So if you see the box setting, so that is 5. So actually direct box strategy is nothing. It's just observation that he find that when आप इसको setting को change भी कर सकते हो. आप 5 है तो उसको 7 भी कर सकते हो, तो your box will shift. Okay. So 5 is more suitable. That's why I'm using the 5. So what happen in 5 is when you select this 5, so the system will check the 5 days of high and low, or according to that, this will start forming the box. For example, let's see that from this point, this I've given the box breakout. So 1, 2, 3, 4, 5. जिस समय कैंडल आपका एक कैंडल को ब्रीच कर देगा प्रीवियस कैंडल को, तो वो कैंडल का हाई और लास्ट मतलब नेक्स्ट 5 डेज का जो भी लो होगा, 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5. राइट. तो 5 में जिसका लो होगा वो लो के अकॉर्डिंग ये लाइन ड्रॉ हो जाएगा, एंड जो हाई होगा अकॉर्डिंगली उसके लाइन ड्रॉ हो जाएगा. सेम वे अब ऊपर जा रहा है, देन अकॉर्ड फ्रॉम यहाँ से आप देखोगे यहाँ ये लो आया, तो ये जो हाई था लास्ट 5 डेज का उसके अकॉर्डिंग ये लाइन ड्रॉ हुआ, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये लो था, तो अकॉर्डिंगली 5 डेज का कैप्चर करके ये नीचे लोअर रेड लाइन आपका ड्रॉ हुआ. यू कैन चेंज दिस सेटिंग टू 7, तो वो 7 डेज का कैप्चर करने लगेगा. तो ये लाइन देखो थोड़ा शिफ्ट हो गया ना. तो सेम वे यू जस्ट नीड टू यूज दिस एज ए. Okay, so you don't need to go much in detail about how these lines are coming. You will automatically get these lines. So this green line is showing that the stock is breaking the previous high, and this red line is telling you the last support the stock has taken, and that is इसमें और कुछ ज़्यादा बॉक्स के अंदर है नहीं. सेम वे द बॉक्स विल गो अप वंस द बॉक्स विल स्टार्ट कमिंग इन द डाउन ट्रेंड चैनल. तो फिर ये आपके जो बॉक्सेज हैं वो भी डाउन ट्रेंड में बनना स्टार्ट हो जाते हैं. आई एम गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश 70, 80, 80, 90%, एंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होगी वो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिपीट करूँगा. इन केस इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश, यू कैन जस्ट नोट डाउन द टाइम. आप टाइम नोट कर लेना कि वीडियो में आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है. तो यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, और यू कैन आस्क मी इन द वेबिनार्स. अपने बहुत सारे वेबिनार होंगे, तो डोंट वरी अबाउट कि ये कोर्स में जल्दी जल्दी कराओ या कुछ कराओ. आराम से यू विल हैव एम्पल टाइम. 2 मंथ बहुत टाइम है, उसके बाद भी सपोर्ट रहेगा. ये स्टार्टिंग में लिखने की बात है. मेरे जितने भी स्टूडेंट्स पुराने हैं वो अभी भी कनेक्टेड हैं थ्रू ए कॉमन टेलीग्राम चैनल. तो डोंट वरी, आपके डाउट ऐसा नहीं है 2 महीने बाद सॉल्व नहीं होंगे. 2 महीने बाद आपके डाउट्स बचेंगे ही नहीं. ओके. तो सिंपली बट चीज़ों को पेंडिंग मत करना, साथ साथ चलते रहना. ट्राई टू कवर विद हैंड इन हैंड विद मी. अदरवाइज अगर आप सोचोगे कि ठीक है वी हैव ऑल द रिकॉर्डिंग्स बाद में देख लेंगे, तो इट विल मेक ए मैस फॉर यू. ठीक है. आई एम टेलिंग यू बिकॉज we have on my past experience with my old students.
तो दिस इज बॉक्स नाउ, दिस इज EMA. लेट मी हाइड दिस. EMA क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. एवरेज आपको पता होगा. लेट मी टेक यू बैक टू द फिफ्थ क्लास. एवरेज क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स के नेम है ABCD टिल J, तो 10 स्टूडेंट्स हैं. तो लेट्स सपोज इनकी हाइट जो है वो किसी की 5 है, किसी की 6 है, किसी की 4 है. द एवरेज पकड़ लो आप 5 है. तो अगर मान लो सबकी हाइट अगर 5 है, तो 50 डिवाइडेड बाय 10, तो दैट विल कम योर 5. तो एवरेज हाइट शुड बी 5. नाउ सपोज आई रिप्लेस दिस टू गाइज विद द हाइट ऑफ 6. ओके, देन व्हाट विल हैपन? 8 बच्चों का हाइट तो वही है 5, तो 8 5 ज़ा 40. नाउ दिस विल बिकम 6 12, तो 40 52 हो गया. नाउ 52 को जब आप डिवाइड करोगे 10 से, तो दैट विल कम 5.2. Your earlier average is 5. Now it's shift to 5.2. Same way, if I change the last three student with the 6 height or 7, then your average will become increase. Same way, if I reduce the height of these two children from 4 to 5 to 4, then your average will go down. So in price terminology, if the price is going high, this lines will start moving up. तो अगर 10 है तो वो 10 डेज का एवरेज ले रहा है. इफ 20 है तो 20 डेज का एवरेज ले रहा है. एंड यू आर इफ यू आर वर्किंग ऑन वीकली चार्ट, तो इट विल टेक द 10 वीक्स ऑफ टाइम फ्रेम, और 20 वीक जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है. तो these are the EMRs 10 20. Mostly for a trading purpose, 10 and 20 is enough for us to work in the market. नाउ अभी आपने देखा होगा मैंने आपके साथ जो चार्ट शेयर किए हैं उनके अंदर कुछ एरोज बने हुए हैं. आपने देखा होगा यहाँ पे एक एरो बना हुआ है और नीचे से भी एक एरो बना हुआ है. तो EMA को हम EMA नहीं बोलेंगे, मूविंग एवरेज नहीं बोलेंगे. EMAs को हम बोलेंगे दीज आर अवर सोल्जर्स. ठीक है. तो 10 MA मतलब द group of 10 soldiers, and this is the second troop of 20 soldiers, 50 soldiers, 100 soldiers, and these are the group of 10 20 50 100 and 200 soldier. And the price is your king, so this is your king. ठीक है. So price is your king. So if the king is supported with max number of troops, so the probability of winning is high, no doubt. Okay. So we have to select the stocks which are supported with the मैश ऑफ द ऑल द सोल्जर्स. जितना सोल्जर का मैश होगा उसके पास, वो उतना विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा. इफ द kings move to forward direction without the soldiers, then the chance of getting killed is high. So for that reason you have to see if the stock is too high from the EMRs, so then your risk reward ratio is not in your favor. So in that case you have to book the profit. And now let me okay. And here uh, so this is what I shared with you in telegrams, that this is a box breakout, and this is the all your soldiers are aligned with the king, and that's how the uptrend started in the stock, right? Now what you have to see here is I am going to introduce one candlestick pattern at this point. After this breakout, you have to watch the what the price is doing. uh, the what the price is doing. So here you can see that once the king move forward, the king goes sideways. ठीक है, ये sideways आया. The soldiers has to come up, and once the king met the soldier, then again the price start moving up. Again the king goes sideways, the soldiers has to come up, and again this way this one start moving up. Okay, so this pattern is what we are going to say जिद्दी पैटर्न. जिद्दी पैटर्न में क्या होगा? योर किंग इज मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड देन द किंग विल स्टे साइडवे. किंग विल नॉट कम बैक, but soldiers has to follow the king, and once the king and the soldiers will meet, the king will start again moving up. That means your price will start moving up. This is called the Jiddi pattern. It will work on every time frame, daily, weekly, and monthly. Same way, this is a humble pattern. In humble pattern, what will happen? Your king will move in a forward direction, but once it get the pressure of the overall market, it will come down to the soldiers, and once they meet the soldiers, then the king moves up. Why this humble and jiddi? Confuse mat hona आप.
हम्बल मतलब किंग इतना हम्बल है, जब उसको थोड़ा डर लगा तो वो वापस नीचे आ गया, वंस इट कम टेक द सपोर्ट ये ऊपर गया। एंड वाई जिद्दी, द किंग, यहाँ पे द किंग इज वेरी जिद्दी, इट्स नॉट रेडी टू कम डाउन, कि मैं तो नहीं आ रहा, यू हैव टू कम अप। तो दिस पैटर्न इज क्वाइट स्ट्रोंगर, जिद्दी पैटर्न इज कंपेयर टू द हम्बल पैटर्न, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू सी, आप यहाँ पे जैसा देखोगे तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग आफ्टर दिस बॉक्स ब्रेकआउट, ठीक है। The this is a king candle. The what the king decided to not to go down. The king goes sideways, and the EMRs has to move up. Once the king met the soldier, again this blast and the box breakout, again then sideways. Now I'm going to introduce the third pattern. That is your called Johnny Lever pattern. Johnny Lever pattern actually क्या है? This is your lever. क्या लीवर का शेप ऐसा होता है? When the price is in the lever and when it's give the when it's backed with soldiers and this green line, so once you can make a position at this point, if the overall market is good, you can easily get the blasting move. तो आपको बहुत ऊपर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, you will get the stock at a very good price. So this is called a lever, but later we change its name to Johnny Lever, because हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो डॉक्टर लाइन से थे वो बोले यार क्या आप लोगों ने मजाक बना रखा है, एंड फॉर दैट रीजन हमने इसका नेम रीशेड्यूल करके इसको जॉनी लीवर पैटर्न कर दिया। तो हेयर यू कैन सी दैट दिस इज योर lever type pattern. So when the stock price is moving in a lever type of pattern, a congested way, then if the trend is up, the stock don't have much space left, so the breakout will happen. And for that point of view, you can make the position at this point, and this is how the stocks move in a up direction. Now let me जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया मॉड्यूल 1 में, this is the RX box EMR. Now I'm going to combine the volume combination and the RSI with this thing. Mostly when you are buying the stock, you have to look for the volumes. Volumes में आपको देखना है कि ब्रेकआउट से पहले जो वॉल्यूम था वो किस तरीके से था। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में टॉप पे आप देखना, यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स की वैल्यू दिखाई देगी। तो हेयर द एवरेज वॉल्यूम इज अराउंड 2.5, राइट? Sorry, average is 2.5 and the volume on this day is 7.5, ऑलमोस्ट आपका 3 times हो गया। then यहाँ पे आपका सेम वॉल्यूम था अराउंड, एंड देन हेयर अगेन दिस इज 2x वॉल्यूम एंड दिस इज योर 5x वॉल्यूम। तो कॉन्जिक्यूटिव डे मतलब 5-6 दिन कंटिन्यूस अगर वॉल्यूम आ रहा है स्टॉक के अंदर, तो स्टॉक इज अबाउट टू change the pattern. And at this point you can also see that most of the soldiers are aligned with this thing. And the third thing what you can see is volume mostly क्या आपका 2x होना चाहिए, वॉल्यूम जो है that should be more than 2x of average. And what you can see in this, sometime what will happen, आप में से किसी ने पूछा भी था कि बॉक्स ब्रेकआउट तो यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, then why not at this point, why at this point? So you can see that this at these times your stock is taking the resistance of RSI 70. Again I am repeating, आप देखना जब भी ऐसा होगा तो आपका जो 70 will act as a good resistance in the RSI terms, तो RSI आपका 70 करके वो रिवर्स हो जाएगा। In case if you make the position at this point and the stock is not working, simply you have to watch whether the RSI is entering into the zone of 70 plus. Actually आपने देखा होगा कि mostly people used to say that RSI above 70 is over bought and below 30 is oversold. ऐसा कुछ भी नहीं होता है। Most of the money form in the market when the RSI is above 70 only. तो हेयर यू कैन सी, अगर आपने ब्रेकआउट ले भी लिया है, यहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये ब्रेकआउट होगा एंड द स्टॉक में गो अप, इट मे गो अप नो डाउट, राइट? बट यू हैव टू सी वेदर द RSI is crossing or not. If RSI is not crossing, then simply you have to take the SL in this point, or you may hold till how the projection is forming. तो कैसे SL लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली आप यहाँ देखोगे योर RSI नॉट ए सिंगल टाइम ब्रेक दिस पॉइंट, तो हेयर एट दिस पॉइंट योर RSI एंटर इनटू द जोन ऑफ 70. Now let me combine every point. The volume should be greater than 2x. Your candlestick pattern breakout and should form humble pattern, Jiddi pattern or the Johnny Lever pattern, right? And your volume should be 2x हो गया और RSI हो गया। थ्री कंडीशन आपका जो है वो मैच करना चाहिए। So let me take a few of my trade examples from the previous scenarios. For example, I've shared with you the IFCI. ठीक है,
यू कैन जैसे मैंने आपके साथ ट्वीट भी शेयर किया था, आई बॉट दिस स्टॉक ऑन आई थिंक 17th और 18, यहाँ पे आई बॉट दिस स्टॉक, ठीक है। एग्जैक्ट डेट आप बिल्कुल नहीं पकड़ पाओगे ब्लास्ट का। तो व्हाई आई बॉट द स्टॉक एट दिस पॉइंट इज सिंपली यू कैन सी दैट दिस इज अ गुड विच पैटर्न, दिस इज योर जॉनी लीवर पैटर्न, ठीक है। So this is your lever type pattern. So I was expecting that this stock will do the breakout in 17 1 or 2 days, and same thing when once the space was not much, but you have to do such type of stunt when your stock is in a uptrend only. तो just like Nasdaq जो मैंने आपको दिखाया कि वो बार बार 70 टच करके गिरा था, but at this point there is not much space left, it's too near to 60 70 range, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे एक bet लिया जा सकता है। एंड दिस टू ट्रूप्स ऑफ सोल्जर, मतलब 10 और 20 सोल्जर, और बाकी भी आप देखोगे तो अलाइंड वे में ही थे, बट थोड़ा सा डिस्टेंस था। बट यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में था, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होगा, बिकॉज दिस इज द किंग इज नॉट टू फार फ्रॉम द EMR। तो आई मेक दिस पोजिशन एंड विद इन 3 to 4 days आई गेट 50 60 70% रिटर्न, एंड एट दिस पॉइंट आई स्टार्ट बुकिंग माई होल्डिंग्स। The learning for you at this point is, apart from Johnny Lever pattern, if you are getting, I want you to note down this point, if you are getting the return of 30 40% within a few days, no matter कि stock कितना bullish है या ऐसे हो 3x 4x होगा, you should book the stock. अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको 4 से 5 दिन के अंदर 30 40% के मूव्स मिल जा रहे हैं, आपको सिंपली बुक करना है। डोंट गो इनटू द थ्योरी कि इस कंपनी का टर्न ओवर हो रहा है, ये चेंज ओवर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है होने दो, टर्न अराउंड हो रहा है कुछ भी होने दो। आपको सिंपली, अगर ये रूल है आपका, इफ़ यू आर गेटिंग 30 40% विद इन 4 5 6 days, सिंपली स्टार्ट बुकिंग योर पोजिशंस। आपको स्टोरी में नहीं पढ़ना है। इसका रीज़न ये है बेसिकली, सम टाइम व्हाट विल हैपन, द इफ द स्टॉक हैज़ टू कम डाउन, तो उससे पहले वो ब्लास्टिंग मूव देता है, राइट। तो आपने कई जगह सुना होगा कि वेन एवर द स्टॉक इज गिविंग द ब्लास्टिंग मूव, तो जस्ट कीप होल्ड एंड डू एवरेज ऑन द अपसाइड, इवन दो वी विल डू दैट, बट दिस इज नॉट द टाइम टू डू द एवरेज व्हेन द स्टॉक इज गिविंग द ब्लास्टिंग मूव। जब इस तरीके से ऊपर जा रहा है, यू कैन एवरेज और यू कैन ऐड मोर स्टॉक्स, बट कभी ब्लास्टिंग मूव जा रहा है आपको एवरेज नहीं करना है, बिकॉज वेन एवर द स्टॉक मेक द पीक, दिस टाइप ऑफ मूव यू विल गेट ऑन द टॉप। तो आप कहीं बार टॉप में फंस जाओगे, तो सिंपली यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली स्टार्ट बुकिंग योर पोजिशंस slowly and cut the positions once the stock crossing the 10 20, or you're crossing the box के नीचे आ रहा है, you have to simply close your positions. Okay, so I cut my position at this point. So I hope this is clear to you. Now let me take you to the monthly chart of the same IFCI. देखो, uh, when you are betting big on something, ठीक है, you can't bet big on the daily chart. This is a very important thing. I want to note it down. देखो, वेन एवर आप जब भी कभी बड़ी पोजीशन या बड़ा पैसा बैट कर रहे हो, तो यू हैव टू बैट ऑन मंथली और वीकली चार्ट। द रीजन इज, बिगर द टाइम फ्रेम बिगर द क्लियरिटी इज। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा आपको क्लियरिटी रहेगा कि क्या हो सकता है, बिकॉज लेट मी एक्सप्लेन दैट पार्ट फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए रोड, ठीक है, एंड यू आर स्टैंडिंग इन बिटवीन द रोड, एंड यहाँ से ट्रक आ रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं, ये ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है। तो द चांस ऑफ एक्सीडेंट इज टू हाई एट दिस पॉइंट, तो दिस इज कॉल्ड द इंट्राडे चार्ट, मतलब 1 आवर और 15 मिनट और वो जो चार्ट्स होते हैं, यहाँ पे उनको ये बोला जाता है, दिस पर्सन इज फेसिंग दिस टाइप ऑफ चार्ट। वन मैन इज सिटिंग एट दिस पॉइंट at the corner of the road, right? He is seeing the traffic आ रहा है जा रहा है, but he has to suffer with the noise and the dust pollution, but at least he can avoid the accident. This is the man who is doing daily chart. This is a daily chart, right? Then at this point there is a building of high rise, fifth floor. A person is standing on the fifth floor. He is also looking at this traffic. What he can avoid is he don't need to meet with this traffic noise or dust जो pollution है वो इसको सबसे कम लगेगा. This is your weekly chart, but the problem with this person is that if the traffic jam is too high, then okay, इसको कहीं जाना है तो वो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। या फ्लडिंग हुआ तो ये थोड़ा इस ये भी बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वीकली चार्ट को थोड़ा सा बाद में इम्पैक्ट होता है। नाउ कम्स द मैन मंथली चार्ट, ठीक है। वो बंदा है वो जो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, ही कैन सी दिस ट्रैफिक फ्रॉम द टॉप, राइट। इसको ना बाढ़ आ जाए या ट्रैफिक जाम हो जाए, ट्रैफिक से ये रुकने वाला नहीं है, बिकॉज वो एयर मोड में चल रहा है, राइट। सेम वे उसको ना एक्सीडेंट के चांस है ना ये है, तो ही कैन अवॉइड एवरी सच टाइप ऑफ न्यूसेंस, एंड फॉर दैट रीजन द मंथली चार्ट्स आर वेरी क्लियर।
तो हाउ टू यूज दिस मंथली वीकली एंड डेली चार्ट, ये चीज़ आप वापस सुनना बार बार इस क्लिप के अंदर, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, आप पूछोगे मुझे पता है। मंथली चार्ट विल गाइड यू द डायरेक्शन, ठीक है, मंथली चार्ट आपको क्या दिखाएगा, डायरेक्शन। वीकली चार्ट आपको क्या करेगा, ये भी आपको डायरेक्शन दिखाएगा, बट ये आपको बहुत क्लियर इमेज देगा ऑफ ए वेरी नेक्स्ट मूव्स क्या हो सकता है, राइट। एंड देन कम्स द डेली चार्ट। डेली चार्ट विल हेल्प यू टू मेक द पोजिशन, ठीक है। मंथली और वीकली आपको सिर्फ ये बताएंगे डायरेक्शन कि दिस स्टॉक इज इन अप ट्रेंड और इन ए गुड सिनेरियोज, एंड द डेली चार्ट विल टेल यू कि कहाँ पे आपको पोजीशन बनाना है। मंथली चार्ट देख के आप पोजीशन कभी भी नहीं बना सकते। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अभी आई हैव मेड 70-80% ऑफ माई पोर्टफोलियो इन IFCI. The reason behind that is this is the January candle, because this is the breakout in September on monthly chart, okay, and आई वॉज गेटिंग दिस साइडवे चार्ट, मतलब ये आपका जिद्दी पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट देन जिद्दी पैटर्न, ऑल योर सोल्जर्स अलाइंग। तो आई वॉज जस्ट वेटिंग कि ये इसके पास आए फ्रॉम लास्ट 3 मंथ, तो जैसे ही टेनामा के पास आया तो आई नो दैट दिस स्टॉक इज फॉर्मिंग द जिद्दी पैटर्न। तो अब सुनो, डेली चार्ट के ऊपर जिद्दी बन रहा है या मतलब फेलियर के चांस भी होते हैं, ऐसा नहीं है डेली में फेलियर, इफ द ओवरऑल मार्केट इज नॉट गुड द दे आर प्रोन टू फेलियर ऑल्सो। तो आप यहाँ पे 5 to 10% के मूव्स आपको मिल जाते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन वीकली चार्ट यू कैन easily get with the strategy what I'm going to share with you 30 to 40% of move on monthly chart. If you are using you can easily make 2x or 3x type of stock. So if you are a professional and you don't have much time to spend in the market on the daily basis, so that is very good part for you. Okay, I'm repeating, that is a good part of for you because the bigger money always form on a bigger time frame. आप में से कईयों ने मुझसे पूछा था कि अगर प्रोफेशनल्स एंड वी डोंट हैव मच टाइम तो इज दिस कोर्स रेलेवेंट टू यू। एक्चुअली दिस कोर्स इज ओनली फॉर यू, इंट्राडे वालों के लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे मतलब इंट्राडे के लिए पैसा होता ही नहीं है मार्केट में। ऑल्दो आई एम गोइंग टू टीच यू द स्ट्रेटेजी बट दैट आपने देखा होगा ट्विटर पे हर कोई पोस्ट कर रहा है, इवन आई ऑल्दो आई एम गोइंग टू पोस्ट वन सिंगल स्टॉक ऑन एवरी डे बेसिस, और मतलब मैं तो फिर भी कम करता हूँ। आप देखोगे लोग तो लिस्ट पोस्ट करते हैं पूरा 5 5 10 10 स्टॉक फॉर टुमारो एंड ऑल दिस। So these are just the public stunts. This is not the way actually the money made. तो हम खुद भी इतना ट्रेड नहीं करते हैं, राइट। तो इसलिए आपको अगर सच में बड़ा पैसा बनाना है तो यू हैव टू वर्क ऑन वीकली एंड द मंथली चार्ट। बाकी नॉर्मली आई यूज टू वर्क ऑन द डेली चार्ट। इससे नीचे 15 मिनट में क्या हो रहा है, 20 मिनट में क्या हो रहा है, यू हैव टू अवॉइड दस टाइप ऑफ थिंग्स। In this course, apart from this, what I have discussed with you, we are too many things also regarding the psychology. That is the most important part. Actually, आपको बताऊँ मार्केट के अंदर 70% जो है ना वो साइकोलॉजी है, बाकी 20% 10% आपका ये है आपका टेक्निकल से, और बाकी 10% आपका सिर्फ पेशेंस है। This is the combination of market, and the beautiful thing is that nobody work on this 70%. Everybody wants to expertise this 20% of the skill. I can cover this 20% of skill within 3 to 4 5 hours आप मुझे दोगे ना, आई कैन कंप्लीट दिस 20x। द मेन टाइम विच एक्चुअली टेक इज द साइकोलॉजी की। अभी आप देखो कि अभी जैसे आज का भी मैं राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस इज 7:30 AM इन द मॉर्निंग। आपको पता है कि आज मंडे को कितना मतलब 2 दिन से कि क्या होगा मार्केट में, ब्लड बात होगा मंडे में, ये होगा वो होगा, तो सच टाइप ऑफ चाउज आर देयर इन द मार्केट। तो हाउ टू स्टे कूल इन द मार्केट एंड हाउ टू सी द बिगर पिक्चर, तो फॉर दैट रीजन साइकोलॉजी, एक मैच्योर साइकोलॉजी इज मस्ट, तो वी विल वर्क ऑन दैट पार्ट ऑल्सो। तो ये समझ गए आप यहाँ पे बड़ा पोजीशन IFCI में क्यों था, बिकॉज आई वॉज गेटिंग द जिद्दी पैटर्न ऑन दिस सेम टाइप ऑफ बेट आई डिड इन MSTC। देखो अगर जितना बड़े टाइम फ्रेम पे आपको जिद्दी और हम्बल पैटर्न बनेगा उतना बड़ा रिटर्न आपको वहाँ देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आई बैट ऑन दिस स्टॉक इन दिसंबर, राइट। So the reason behind this is a box breakout. The stock is above the breakout levels and going the sideways. ये breakout हुआ and ये जिद्दी pattern form. The king is going sideways. Once it meet the soldier, ये इस point पे हम खड़े थे। तो I was just waiting कि एक breakout आए। तो अब breakout कहाँ दिखेगा आपको? You have to check on daily chart. Monthly पे आपको नहीं दिखेगा। मंथली पे आप वेट करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा, राइट। तो you can check my tweet. I made my position on in this candle. ये 14% का कैंडल था। आई मेड माई पोजिशन इन दिस कैंडल। द रीजन बिहाइंड दिस कैंडल इज ये 14% था, इवन दो माई पोजिशन इज 10%, मैं 10% के ऊपर इसको बाय किया था सेम डे। बिकॉज क्योंकि देखो
मंथली चार्ट में मुझे दिख रहा था कि दिस स्टॉक इज गोइंग टू मेक द जिद्दी पैटर्न, अगर वो जिद्दी बनता है तो 50-60% या 2x का रिटर्न ईजी होता है उसमें। तो आई कैन एटलीस्ट बैट ऑन 10% की, ठीक है 4-5-6% का स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा, बट आई कैन मेक द पोजिशन इन सच सिनेरियोज। उसके बाद once the breakout happen, then what you have to watch ki whether your stock which you are holding is making which type of pattern. So here you can see that your stock is on daily, your stock is forming जिद्दी पैटर्न, मतलब या किंग गो साइडवे वेटिंग फॉर द सोल्जर्स टू अलाइन, जैसे ही सोल्जर मीट किए यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखो ब्लास्ट हुआ, अगेन गो अप, देन अगेन दिस इज द जिद्दी पैटर्न, साइड में हुआ, देन इट्स टच टू दिस एंड दिस इज योर जॉनी लीवर पैटर्न भी दिख रहा होगा आपको। एंड दिस ब्रेकआउट हैवन एट दिस पॉइंट आई स्टार्ट बुकिंग माई पोजिशंस, ठीक है। तो अराउंड 450 पे खरीदा था, 850 पे आई स्टार्ट क्लोजिंग माई पोजिशंस, ठीक है। सपोज इफ यू आर होल्डिंग दिस स्टॉक, आप देख रहे हो कि यहाँ पे ठीक है ये अभी नीचे आया, देन अगेन इट्स गोइंग अप, तो जा सकता है नो डाउट, बट जैसा मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, इफ यू आर गेटिंग ए गुड मनी विद इन ए शॉर्टर टाइम फ्रेम, तो यू हैव टू बुक। अभी यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपने चलो होल्ड कर रहे हो, सिंपली वेन एवर द स्टॉक इज breaking the breakout candle low, you have to exit your position. Let me draw this. Suppose this is your breakout candle, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे ये breakout candle है, इसका लो अगर ब्रीच हो रहा है किसी भी पॉइंट के ऊपर, देन यू हैव टू एग्जिट द स्टॉक। द रीजन इज दैट why you bet on this stock, you are betting on this stock because of this breakout candle, because some you are thinking that some big person has doing the buying in this stock, and on the back of this you are doing you are making your own position. If the stock is closing below this point, that means that somebody more stronger person is selling the stock comparing to this, तो we have to be with that person। हमारा कोई समझ रहे हो ईमान धर्म नहीं है, अगर कोई स्ट्रॉन्गर पर्सन के साथ हम चढ़े वो फेल होता है तो वी विल गो विद दिस पर्सन। तो सिंपली अगर आपका कहीं भी देखना ब्रेकआउट फेल हो रहा है, दैट मीन द स्टॉक इज नॉट ready to go up from that direction, so better you have to exit the stock। So this is the first breakout, this will be your stop loss, then this is your breakout, this is your stop loss, ठीक है। once the breakout happen तो your stop loss will go up, फिर यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ, देन दिस इज योर स्टॉप लॉस, देन यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ, दिस इज योर स्टॉप लॉस। ऑन द वेरी नेक्स्ट 2 days, विद इन 2 days योर स्टॉप लॉस विल गेट हिट, ठीक है। तो ये चीज आप लिख लो, ब्रेकआउट कैंडल का अगर लो के नीचे क्लोजिंग होता है तो यू हैव टू बुक योर लॉस, नो मैटर उसके बाद वो वापस रिवर्स ऊपर आ जाता है, आने दो कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज आवर रूल दैट इफ द ब्रेकआउट कैंडल लो इज ब्रीच, यू हैव टू एग्जिट योर पोजिशंस। Let me take few more examples। देखो in current scenarios the examples are too less, okay, so it's too difficult to make you understand with the current scenario setup, so I am trying, I will take the setups if available in this market। This is a website I shared with you, SS Stock Alert। So how to use this now, we are going to see this, and the screener charting I've shared with you in this, this is Sumit Tata system I shared with you, right? Hello, ठीक है। तो सुमित टर्टल सिस्टम का जो कोडिंग है वो एक बार आपको समझाता हूँ। इट्स नॉट एनी मतलब इट्स जस्ट ए सिंपल कोडिंग, सिंपली द फर्स्ट लाइन इज टेलिंग यू डेली क्लोज अबव द 21 डे हाई, मतलब लास्ट 21 डे हाई के ऊपर किसी स्टॉक ने अगर ब्रेक किया है तो दैट स्टॉक शुड कम इनटू दिस लाइन। प्राइस जो है वो 30 के ऊपर होना चाहिए, वी डोंट हैव टू वर्क द स्टॉक्स विच आर बिलो 30। एंड द वीकली क्लोज जो है, मतलब आपका जो 52 वीक का हाई है, प्राइस जो है दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ 25% ओनली फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, इट शुड नॉट बी लाइक 60% गिर गया, 70% गिर गया, सच टाइप ऑफ स्टॉक हम काम नहीं करेंगे। Normally in bull market, I change this setting to 80 85 normally within 15, because आपने देखा होगा मेरे मोस्टली स्टॉक आई वर्क usually work on the all time high stock के जो आसपास रेंज में होता है, but right now the scenarios is very bad, तो in this case if I change the setting to 85 तो बहुत कम stocks आएंगे, ऑलरेडी 75 में भी आप देखोगे तो only I have this much 8 or 9 stocks are there। देखना अगर आपका ओवरऑल ट्रेंड, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। अगर आपका ओवरऑल ट्रेंड, ठीक है, वीकली चार्ट आपको बताएगा, इफ ओवरऑल ट्रेंड इज नॉट
good that is in a downtrend channel, don't try to swim against the shorter waves. ठीक है, अभी आपका डाउन ट्रेंड चैनल है, आप सोच रहे हो कि नहीं यहाँ से रिवर्स हो जाएगा एंड यू आर बैटिंग ऑन दिस, तो यू आर betting against the trend, and once you are doing the trade against the trend, the probability of winnings are quite low. Okay, तो इसको जब आपने रन किया तो कुछ स्टॉक्स आएंगे. यूजुअली व्हाट आई डू इज, इसके अंदर जो मतलब जो 12-15% मूव हो गए, आई यूजुअली अवॉइड सच टाइप ऑफ स्टॉक. तो बीच के जो स्टॉक होते हैं 5 to 6%, आई यूजुअली टेक सच टाइप ऑफ स्टॉक्स. जैसे जेएस पैरादी फॉस्फेट है. तो देखो, so this is Paradip phosphate. The what is actually happening in the Paradip phosphate? Well, let me introduce one more thing at this point. देखो, आप जब ये डार्वेक्स का बुक पढ़ोगे तो you will find that he work in only the bull markets. This strategy will fail when the bear market, और उसमें वो काम नहीं करेगा. तो simply what he do actually, in his time what he do is actually he take the stop losses and just sit on the cash until and unless the scenarios are not good. एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज दैट उनका जो टाइम था उस समय मार्केट, यूएस का मार्केट बहुत बुलिश था, तो ही गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, राइट. बट विद दिस इफ यू वांट टू पिक सम बॉटम पिकिंग अगर आप करना चाहते हो, तो इन दिस बॉक्स पार्ट इफ यू आर यूजिंग दिस 10, मतलब इन्फ्यूजन आप यूज करोगे, तो वेन एवर यू गेट दिस 10 or 20 EMA क्रॉस ओवर, ठीक है, ये चीज मैंने आप ट्विटर पे भी शेयर किया था, बट ओनली दिस पार्ट नॉट कंबाइंड विद द बॉक्स. So whenever there is a 10 or 20 EMA crossover is happening, तो this give you the good signal that the trend is changing. Okay, जैसे आप देखोगे वाइस वर्सा, कि अगर इन दोनों का क्रॉसओवर हो रहा है रिवर्स डायरेक्शन में, तो फ्रॉम दैट पॉइंट द स्टॉक एंटर इनटू द डाउन ट्रेंड होरिजन, इसका रेजिस्टेंस लेके वो बार बार गिरता रहेगा. वंस वी आर क्रॉस दिस क्रॉस ओवर, देन द चार्ट, मतलब द स्टॉक इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव. एंड आप देखोगे यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, दिस इज द बॉक्स ब्रेकआउट भी हो गया साथ में. एंड you can see that what we are doing, this stock is doing, the stock is making the जिद्दी पैटर्न साथ साइड में हुआ. अगर ये थोड़ा वीकर होता तो ये हम्बल पैटर्न आता, मतलब स्टॉक विल कम टू दिस पॉइंट एंड देन ओनली दिस विल गो लाइक दिस ओनली, ठीक है. तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि दैट द स्टॉक इज फॉर्मिंग द जिद्दी पैटर्न, यू कैन मेक ए बिगर पोजिशन. तो दिस इज स्टॉक इज फॉर्मिंग द जिद्दी पैटर्न, वंस इट मैट द सोल्जर्स, this is the 6% candle, then again this is a sideway one candle, then again this is the blast of 5 to 6% of candle. When you are buying a good stock now, the probability is they will recover very fast compared to the overall market. अब ये देखो, ये गिरा था पैराडाइज फॉस्फेट, बट इट मूव्स गुड. फंडामेंटल का पार्ट हम मॉडल 2 में बोलेंगे. तो इस इस मॉडल 1 में मेरा जो मेन पर्पस है दैट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ द टेक्निकल्स विल वर्क इन मार्केट्स. तो वो चीज़ हम करेंगे. नाउ यू कैन सी दैट दिस स्टॉक एंटर्ड इनटू द जोन ऑफ 70 प्लस. आप देखोगे जब तक ये यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा था, दिस इज बिलो 70 एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम द स्टॉक इज एंटरिंग इनटू द जोन ऑफ 70. तो नाउ यू हैव टू कीप दिस स्टॉक इन द रेडार. वैसे तो यहाँ पे ये बाइंग बनता था, बट रेडार, बट इफ द योर स्टॉक गेट द कंसोलिडेशन कम टू दिस पॉइंट, तो यू कैन मेक ए पोजिशन. अभी sometime what will happen, you will ask me at this point कि whether I should make the position or not. The simple answer, या मुझे देने का जरूरत नहीं है, आपको खुद पता होना चाहिए कि if you are too far from the soldier, the probability of winning will be quite low. ऐसा नहीं है, हो सकता है यहाँ 20% का कैंडल भी बन सकता है, बट द थिंग इज द प्रोबेबिलिटी इन योर फेवर इज नॉट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो बोलता है वो आपके यहाँ कम हो जाएगा. तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द जिद्दी पैटर्न्स एंड ट्राई टू ट्रेड द जिद्दी पैटर्न्स ओनली. तो देर आर नॉट मच स्टॉक, तो मेरे पास अभी एग्जांपल्स है नहीं करंट मार्केट सिनेरियो के. फॉर दैट रीजन आई एम गोइंग टू शेयर यू द प्रीवियस एग्जांपल्स. लाइक मारिको आ रहा है उसमें, तो आप मारिको में देखेंगे तो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, दिस इज अ बॉक्स ब्रेकआउट, ठीक है. दिस इज योर 10 EMA 20 EMA सोल्जर क्रॉस ओवर के बाद आपका पैटर्न चेंज होता है, द स्टॉक इज होल्डिंग ब्यूटीफुल. ओके, वॉल्यूम्स आप देखोगे तो यहाँ पे जो एवरेज, व्हाट व्हाट फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विद इज फ्रॉम द मंथली चार्ट. सबसे पहले आप मंथली चार्ट में देखोगे कि डायरेक्शन क्या है. तो व्हाट यू कैन सी द स्टॉक इज इन ए रेंज ऑफ गुड कंसोलिडेशन फ्रॉम ए वेरी लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड. तो ये साइडवे था. नाउ दिस इज मूविंग टू द 20 मंथली एवरेज, ठीक है. दिस इज नाउ 20, नॉट डेली, दिस इज 20 मंथली, एंड दिस इज forming a sort of Johnny Lever pattern. So if this Johnny Lever pattern will break, it may give the 30, 40, 50% of candle.
सेम थिंग जस्ट लाइक आई शो यू इन MSTC, IFCI, यहाँ पे आप देखोगे दिस इज अ ब्रेकआउट एंड आफ्टर ब्रेकआउट 3 to 4 month साइडवे जिद्दी पैटर्न एंड वंस दिस किंग मीट दिस एंड दिस इज अ कैंडल ऑफ 15 and 11%, तो दिस इज इजिली आपका 27% ऑफ रिटर्न विद इन ए 2 month। और क्या चाहिए आपको? तो ऑलवेज ट्राई टू वेट फॉर द सेटअप्स। आपको ऐसा नहीं करना है मार्केट में, इफ द सेटअप्स आर नॉट अवेलेबल जस्ट वेट एंड वॉच। देखो होता क्या है, ये बहुत, दिस इज गोइंग टू बी द इम्पोर्टेंट थिंग, नोट इट डाउन। वेन एवर यू आर बेटिंग ऑन टिप्स, जब आप किसी की टिप्स पे काम कर रहे होते हो, आपको पैसा बनाने की जल्दी होती है, क्योंकि आपको आप, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, आपको लगा यार ये टिप दे रहा है, ये स्टॉक छूट गया शेट, अब पता नहीं ये टिप दूसरी कब देगा, राइट? एंड व्हेन यू आर बैटिंग ऑन योर ओन ट्रेड, आपको पता है देयर एम्पल स्टॉक, देयर आर मोर देन 2000 स्टॉक इन द मार्केट एंड डेली यू विल गेट अपॉर्चुनिटी इन सो मेनी स्टॉक्स। तो आपको जो एक फोमो है ना वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज यू नो कि यार ये मुझे मेरा सिलेक्शन लेना है, और मेरे सिलेक्शन तो रोज कहीं भी आ जाएंगे, और नहीं भी किया 3 दिन तो चौथे दिन मैं खुद से ढूंढ लूंगा। ठीक है? तो व्हेन यू आर देन दैट, दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला है कि ट्राई टू रिड्यूस एज मच एज ट्विटर होल्डिंग। आप जितना देखोगे ना ट्विटर, इवन मैं तो आपको बोल रहा हूँ मुझे भी आप अनफॉलो कर देना एक टाइम के बाद, बिकॉज आप जितना लोगों के व्यूज देखोगे ना, तो आप एक्चुअल व्यू देख ही नहीं पाओगे अपना, बिकॉज योर व्यूज विल बी बाइज्ड विद समबडी एल्स बाइज। अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर बोल दिया कि अभी गोल्ड नीचे जाएगा, आपका पैटर्न बोलेगा ना गोल्ड ऊपर जाएगा, स्टिल योर व्यूज विल बी बाइज्ड विद मी कि नहीं यार मैंने तो इनसे सीखा है, तो नहीं शायद गोल्ड नीचे जाएगा, इनको कुछ ज़्यादा दिख रहा है। नो, द थिंग्स नॉट वर्क इन दिस वे। ओके, फॉर एग्जाम्पल चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो मारिको इज फॉर्मिंग ए गुड पैटर्न ऑन द मंथली चार्ट, वीकली भी आप देखोगे तो दिस इज इन ए गुड शेप, राइट? तो ऑन डेली बेसिस इफ द ओवरऑल मार्केट इज गुड, तो यू कैन मेक द पोजिशन इन दिस स्टॉक। तो सिंपली इवन दो आई एम गोइंग ऑल्सो गोइंग टू ऐड दिस इन माई लिस्ट, तो आपको ऑल्ट और डब्ल्यू बटन दबाना है, तो दिस विल ऑटोमेटिकली गेट इन टू योर पोर्टफोलियो लिस्ट एंड जस्ट प्रेस ए सेव बटन। ओके, वन थिंग you asked, let me take it. Someone asked me regarding this ये L बटन, ये लॉक बटन होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लॉक? तो लेट मी, इसको लॉक को ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, देयर इज नॉट मच डिफरेंस ऑन द डेली चार्ट इफ यू कैन सी। ठीक है, बट ऑन व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द बिगर टाइम फ्रेम, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन। So when I remove the lock, this chart is looking like this, and when I do this lock, so it will look like this. The the reason what actually happened, let me discuss this. Suppose at this point यहाँ पे आप देखोगे the stock is trading at 100 rupees, right? And once this stock's traded at 200 rupees, this is the 100% of return, right? At the same time यहाँ पे आप देखोगे, अगर suppose यहाँ पे मैं कर देता हूँ 500 की है ना, ये 500 यहाँ पे, the stock is 500, यहाँ पे भी ये 100 rupees बढ़ा 600, but this is only 20%. But when you are not using a log chart, तो it will show you the candle with 100 rupees. बट हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको इंटरेस्ट उसमें है कि परसेंटेज वाइज चार्ट में क्या मोमेंटम हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे 100 रुपये बढ़ेंगे तो इट्स 100% मूव, यहाँ पे 100 रुपये बढ़ेंगे तो इट इज जस्ट 20% मूव। तो लॉग चार्ट जो है वो आपका परसेंटेज टाइम में चार्ट कन्वर्ट करता है, एंड व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द लॉग, तो वो प्राइस टर्म की कैंडल्स बताता है, जैसे कि ये 300 रुपये है तो 300 रुपये कैंडल के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है, 300 400। बट ये 400 रुपये मैटर नहीं करेगा, बिकॉज ये 1100 के ऊपर 400 बढ़ा है, ये आपका 400 के ऊपर 400 बढ़ा है, तो दैट इज 30-40% रिटर्न एंड दिस इज 100% रिटर्न। So for that reason, you have to use the log charts only on a bigger time if you are working on a bigger time frame. ठीक है, तो दिस इज द सुमित टर्टल सिस्टम आई शेयर्ड विद यू। नाउ कमिंग टू दिस, एक वेबसाइट मैंने आपके साथ शेयर किया था ssstocksalert.in। तो व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली गो एंड राइट फ्रैक्टल here। ठीक है, and fractal you will see that daily, weekly and monthly type of pattern you will get। simply go, if you are working on a bigger time frame, just go with the weekly chart, मैं दोनों आपको दिखाऊंगा, and on a shorter time frame you are go with that this one डेली चार्ट। तो फॉर एग्जांपल अभी भी इसके अंदर भी स्टॉक्स कम रहेंगे बिकॉज द ओवरऑल मार्केट सिनेरियोज आर नॉट गुड। तो इसमें जैसे KSCL आ रहा है, मतलब कावेरी सीड आ रहा है, लेट्स चेक दिस चार्ट। तो मंथली व्हाट यू कैन सी इज इन दिस, that after breakout, after it's such a good move, the stock is forming the humble pattern, and after humble pattern जैसे ये जॉनी लीवर पैटर्न इसके अंदर आया, then this is a good breakout। वीकली चार्ट आप देखोगे तो आपको सिंपली देखो, पहले चीज़ें डेली पे रिफ्लेक्ट होती है, देन इट विल रिफ्लेक्ट ऑन वीकली एंड इट विल टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द मंथली।
तो अगर ये चार्ट आपने उस समय देखा होता तो आपको मालूम पड़ जाता वीकली पे दैट दिस इज योर जॉनी लीवर पैटर्न, राइट? And this is Johnny Lever breakout. Then this is your Jiddi pattern. Sideway हुआ. Once it meet the soldier, this is a candle of 21%. Then one sideway candle, and again this is a 15%. 20, 30, 35, 40% of return within a 3 week of time. What more you want in such type? If the stocks are giving such type of return in such markets, right? Then just imagine what you can do in a bull market or even in a sideway market. If you this type of things are working on a तो अब डेली पे ये चार्ट कैसा दिखेगा? तो फ्रॉम दिस डायरेक्शन यू कैन सी दैट द स्टॉक हैज गिवन द ब्रेकआउट, देन यहाँ 10-20 फॉलो कर रहा था। दिस इज एक आपने नंबर देखा होगा व्हेन आई शेयर्ड विद यू, एक नंबर लिखा था उस चार्ट में, 1 देन 2। यूजुअली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ट्राई टू बाय द ब्रेकआउट, सेकंड ब्रेकआउट, फर्स्ट ब्रेकआउट को हमेशा आपको अवॉइड करना है। द रीजन इज दैट व्हेन द suppose this is a good bank, मतलब some big players is entering into this stock, but the thing what will happen at this point is even though the big volumes is there, but the people who stuck at this level they will start trying to sell their holding कि चलो हमारे को हमारा प्राइस आ गया, let exit, and for that reason this week will come and the stock will take some few more times. Again when the buying pressure continue in the stock and then second breakout will happen at this time, बहुत सारा जो सप्लाई होता है मार्केट के अंदर वो ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, तो ये जो जितना सप्लाई है मोस्टली ये ऑब्जर्व हो जाता है एंड यू कैन एक्सपेक्ट back to back types of move after such type of candle. So second breakout के बाद you can see what is happening. This is forming your Jiddi pattern and once it meet, it's a blasting move. And after this such a big move, the stock is forming the humble pattern. मतलब king आपका वापस 10M up है and then again this breakout is happening, right? Now to what I want to say, if you know the strategy, what you can do is simply wait for at least sideway market because इतना जो complex volatility चल रहा है उसके अंदर आप काम नहीं कर पाओगे and wait for this because दिस थिंग इज गोइंग टू बी विद यू लाइफ टाइम। अब मार्केट में देखो एक साइकोलॉजिकल बात आपको बताता हूँ, जब आपको पता है कि आपको इस आपके पास स्किल्स है, राइट? मार्केट आपके बाद भी रहने वाला है, मार्केट इज स्टिल फॉर इन्फिनिटेड टाइम, योर लाइफ इज लिमिटेड, तो उसके बाद भी मार्केट तो रहेगा। देन यू हैव ample opportunities in your life to trade and to make the money from the market, then why to be in hurry कि नहीं चलो आज ही पैसा बनाना है, कल ही ऐसा पैसा बनाना है? जस्ट टेक स्टॉक मार्केट एज ए वेल। जब आपको जितना पानी चाहिए बकेट लाओ, निकालो और लेके जाओ। बट इफ़ यू ट्राई कि नहीं मैं सारा पानी यहाँ इसको कुएं को खाली कर देता हूँ, सारा पानी निकाल के अपने घर में भर लेता हूँ, राइट? तो इट विल फ्लडिंग योर हाउस। ठीक है, आपका नुकसान होगा। तो बेटर ये है वेन एवर और स्लोली यू हैव टू मेक द मनी इन द मार्केट बिकॉज यू नो यू हैव द स्किल्स नाउ, यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन समबडी एल्स, तो यू हैव द स्किल। ठीक है, जब मार्केट सिनेरियो ठीक होगा देन आई विल ट्रेड, मुझे कौन सी जल्दी है पैसा बनाने की, बट इट। तो जिस साइकोलॉजी से आपको काम करोगे तो यू विल नेवर गेट मतलब पैनिक नहीं होगा आपको। ठीक है, तो फ्रैक्टल ब्रेकआउट इज एक्चुअली व्हाट इट इज अ बॉक्स ब्रेकआउट ओनली, ठीक है, ऑन द डेली चार्ट। तो जैसे आपको मालूम करना है कि किस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है तो सिंपली यू विल फाइंड दैट फॉर एग्जांपल दिस इज इन गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, दिस इज जस्ट योर आपका जॉनी लीवर पैटर्न बन रहा है, दैट दिस इज द फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट एंड दिस इज अ फॉलो अप कैंडल विद द गुड वॉल्यूम्स। नाउ चेक द वॉल्यूम एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम देखोगे तो दिस इज 2 मिलियन का आपका एवरेज था एंड दिस डे वॉल्यूम इज 7 मिलियन, ऑलमोस्ट 3x। ठीक है, आपका 3x वॉल्यूम हो गया। तो यू कैन जस्ट नाउ जस्ट कीप दिस स्टॉक इन वॉच लिस्ट और देखो आज मार्केट पे कैसा बिहेव करता है। सपोज इफ द मार्केट टुडे फॉल 2-3% जो भी एक्सपेक्टेड है लोगों का, एंड इफ दिस स्टॉक इज नॉट फॉलिंग अकॉर्डिंग टू दैट, दिस स्टॉक इज फॉलिंग 1 or 1.5 और मतलब लोअर देन द पेरेंट इंडेक्स, तो यू कैन कीप roll your eyes on this stock whenever you get the support of the soldiers, or you just watch कि which type of pattern this stock is forming, this stock is forming humble pattern or जिद्दी pattern। watch आपका रहेगा, then if it is forming the जिद्दी pattern that will give you the direction that this stock is quite strong। तो आप अपना पोजीशंस एक दो चार दिन के अंदर इन स्टॉक्स के अंदर बना सकते हो। ऑल दो दिस स्टॉक इज इन ए वेरी गुड डाउन ट्रेंड, आप देखोगे तो ये दिस इज नॉट द प्लेस टू मेक द ट्रेड, बट द थिंग इज आपको छोटा मोटा ट्रेड बनाना है, कुछ टाइम के लिए बनाना है, तो यू कैन ट्रेड इन दिस बिकॉज यू आर अगेन स्विमिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। नॉर्मली बड़ा पैसा जो होता है ना वो हमेशा तब बनता है व्हेन योर ट्रेंड इज इन अप डायरेक्शन। तो जब भी आप अप ट्रेंड के अंदर आप बैट करोगे तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज क्वाइट हाई, बट वेन एवर यू आर बैटिंग अगेंस्ट द ट्रेंड कि आपको लगेगा कि नहीं अभी तो शायद ब्रेकआउट हो जाएगा, तो द चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज क्वाइट हाई। तो ऐसे में आपको मोस्टली वेट ही करना है, गॉट इट, वेट करना है। या फिर बाद में एक चीज मैं आई विल कवर दैट व्हेन इन द डाउन टर्न चैनल व्हेन यू आर कमिंग टू द सपोर्ट, तो यू कैन बैट ऑन ए बाउंस, ठीक है। बट अगेन द सेम थिंग कि पानी ऐसे जा रहा है एंड यू आर स्विमिंग अगेंस्ट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट लो। नाउ फ्रैक्टल में आपको वीकली पे आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट द स्टॉक्स विच आर गिविंग द वीकली ब्रेकआउट। मतलब यहाँ पे जो वीकली ब्रेकआउट हो रहा होगा वो आपका आएगा। वेन एवर द वीकली ब्रेकआउट हैपन ना, इट यूजली गिव गुड मनी। तो दूज हु आर द प्रोफेशनल डोंट गेट द टाइम, सिंपली सैटरडे संडे को आप इसको रन करो, फ्रैक्टल को, वीकली को, एंड देन जस्ट मेक द लिस्ट ऑफ द स्टॉक्स एंड यू कैन बैट ऑन दैट स्टॉक्स। आप वीकली को डेली में भी रन कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि सम स्टॉक इज डूइंग द वीकली ब्रेकआउट ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे, so you will get the stock. So you just work on weekly charts if you want to make a good money in the market, ठीक है। तो दिस इज द वीकली ब्रेकआउट हैपेंड इन लास्ट वीक। जैसे सियाराम सिल्क मैंने भी लिया हुआ है, लेट मी शो यू द चार्ट। देखो, this stock was in a good quite silent range. This is a first breakout happen at this point. कंडीशन मीट करो। फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपका, बॉक्स ब्रेकआउट, ठीक है, यहाँ पे आपका बॉक्स ब्रेकआउट हुआ। सेकंड कंडीशन, ऑल योर सोल्जर्स आर अलाइंड, और ओके ऑल माय सोल्जर्स आर अलाइंड। वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम्स इज 1.1 का एवरेज है एंड दिस वॉल्यूम इज 5.2, 4x वॉल्यूम हो गया। तो दिस इज योर थर्ड सिनेरियो। आरएसआई ब्रेक हुआ, यस आरएसआई इज अबव 70। टिल दिस होल जर्नी द आरएसआई वाज नॉट once cross this 70 zone on weekly chart, this is the first time। तो बॉक्स ब्रेकआउट फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड आपका वॉल्यूम मोर देन 2x। थर्ड आपका ऑल द सोल्जर्स आर अलाइंड। फोर्थ आपका आरएसआई ब्रेक 70 जोन, 65 या 70 वो भी चलेगा, मोस्टली 70 इज परफेक्ट। तो एट दिस टाइम योर प्राइस इज 540 एंड दिस गोज टू 950, ऑलमोस्ट मतलब 80 85 90% ऑफ रिटर्न्स, राइट। अभी हुआ क्या वीकली में, अभी देखो आफ्टर दिस टू कॉन्जिक्यूटिव कैंडल द स्टॉक गोज द साइडवे, दिस इज योर जिद्दी पैटर्न, किंग ने थोड़ा वेट किया, देन दिस गोज अप एंड दिस इज, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट फेल हो गया, दिस इज योर वेयर यू हैव टू टेक द स्टॉप लॉस, राइट। Why I bet on this stock? I don't know whether I will go right or wrong. The simple way is this stock is in an uptrend now. ठीक है, जो एक साइलेंट मोड में था, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द स्टॉक। तो नेचर से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये स्टॉक साइलेंट मोड में था एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम द स्टॉक हैज शोज सम मोमेंटम, मतलब सम अच्छा बाइंग इसके अंदर हुआ है। देन एज पर मार्केट सिनेरियो सब नीचे आया तो ये भी नीचे आया, तो वंस द स्टॉक इज इन द मोमेंटम इट विल कंटिन्यू बी इन द मोमेंटम। ये आप न्यूटन का एक लॉ भी आपने देखा होगा, the things in the motion will keep in motion until and unless the external force is not acting on it. Same thing work in this stock market. So this is in a motion, so something is there and it may continue if the overall market is good. तो वीकली पे मुझे लगा कि नाउ दिस इज आई थिंक गुड टू बैट एंड सेम थिंग इज फॉर्मिंग ऑन द मंथली चार्ट। मंथली में आप देखोगे ये ब्रेकआउट हुआ विद गुड वॉल्यूम, then this is forming the humble pattern because the overall market is not good and again the stock is trying to go up। सेम थिंग यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ, देन दिस इज योर, आप देखोगे कि यहाँ पे आपका जॉनी लीवर पैटर्न था, दिस इज ब्रेकआउट, द अगेन ब्रेकआउट, देन आपका जिद्दी पैटर्न ऊपर गया, सुपर जिद्दी पैटर्न एंड दिस इज गोइंग लाइक दिस ओनली। तो फ्रॉम 240 टू 60 टू 600 ऑलमोस्ट 3x ऑफ मूव। तो बिगर द टाइम फ्रेम यू विल कैप्चर द गुड मूव्स ऑन ए बिगर टाइम फ्रेम्स, राइट। अभी पोजीशन जो आपका होता है वो डेली पे बनता है, तो वेयर आई मेड द पोजीशन 2 days बैक, आई थिंक 3rd अप्रैल मेरा पोजीशन इस कैंडल में है। रीज़न क्या था, दिस इज स्टिल अ डाउन ट्रेंड बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड दिस स्टॉक इज फॉर्मिंग द हायर हाइज। यहाँ पे जो आप देखोगे तो वो धीरे धीरे ऊपर होता जा रहा है एंड वेन एवर यू मेक द चैनल ऑन द स्टॉक, उसके साथ में आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक द चैनल ऑन ऐसा। आरएसआई में भी आपको चैनल बना के देखना है कि आरएसआई ब्रेकआउट हो रहा है नहीं हो रहा। RSI breakout is also required. So you can see that the stock is in a downtrend and at this point the RSI also broken out and this price is also broken out and this is the breakout and this is your EMRs aligned, ठीक है। आपका EMI क्रॉसओवर भी हो चुका है, EMI aligned भी हो चुका है and the price is above this point।
अभी डेली में जैसा मैंने आपको पोजीशन बनाने को बोला, बिकॉज एक्चुअली क्या है ना, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग द जितनी स्टॉक्स एंड सच टाइप ऑफ स्टॉक ऑन डेली बेसिस फ्रॉम योर साइड। ठीक है, नॉर्मली हम यही करते हैं, हम क्या है, आप लोगों को काम पे लगा देंगे और आप लोग ये स्टॉक ढूंढ ढूंढ के बताओगे शाम को कि सर ये ब्रेकआउट हो रहा है तो कहना है बाय, उसमें से हम लोग भी ट्रेड लेते हैं। सही बताऊँ मैं आपको, हम ऐसा ही करते हैं। तो सिंपली इन दिस स्टॉक डेली पे, वीकली पे देखो बात करना आसान है बिकॉज द पिक्चर इज टू क्लियर। ऑन डेली व्हाट यू कैन सी एट दिस पॉइंट, यहाँ पे आप देखोगे ऑल योर सोल्जर्स आर अलाइंड। ठीक है, दिस इज अ गैप, दिस इज द फर्स्ट बाइंग बाय सम बिग प्लेयर। ओके, then the stocks come to again back to these levels, then again a good gap, मतलब फिर again some big players adding this stock. Now this is forming a sideway patterns, all the soldiers are aligned and this is a daily breakout. Simply you can buy this stock at this point because यहाँ पे आपका देखो RSI क्रॉस नहीं होता एंड एट दिस पॉइंट और RSI ब्रेक द 70 जोन। और वंस योर स्टॉक इज इन द रेंज ऑफ 60 और 70 ना, तो वो अगर पैटर्न अच्छा है तो वो मोस्टली ब्रेकआउट कर ही देता है 70 को। 70 को नहीं करता टच, आपने पोजीशन बनाया एंड 70 को टच करके वापस गिरा, तो यू हैव टू एग्जिट और रिड्यूस योर क्वांटिटी। तो दिस इज गोइंग अप, देन दिस इज, मतलब ये फिर से अंदर आया टेकिंग द सपोर्ट ऑफ 10 एम, अगेन ब्रेकआउट, देन अगेन जिद्दी पैटर्न। यूजुअली जिद्दी पैटर्न विल फॉर्म बिल्कुल कंसोलिडेशन के पास से ज़्यादा बेटर ऊपर बनता है। द रीज़न इज दैट बिकॉज जब आपका सप्लाई कम हो जाएगा, इस पॉइंट पे सप्लाई, यहाँ पे अगर होता है स्टॉक तो सप्लाई इज टू हाई बिकॉज द पीपल हु स्टक एट दिस लेवल दे विल स्टार्ट सेलिंग। तो बड़े मूव जो होते हैं ना वो हमेशा आपको लास्ट में मिलते हैं बिकॉज यहाँ पे सप्लाई कम होता है, यहाँ पे फोमो ज़्यादा होता है। At this point, FOMO is high, but somebody is saying that this company is going to do something reform and falana dhikna, and for that reason, the price momentum is quite high at in last candles. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमेशा whenever you are getting the good moves in the last, just book it. Don't think that the stock will become 4x or 5x. So this is the previous and this is the new positioning where I make my position. ठीक है, तो फ्रैक्टल ब्रेकआउट में आपको इजीली स्टॉक्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल फेज 3 आ रहा है, लेट मी चेक फेज। ठीक है, but although the same thing, the stock is in a downtrend, but although this stock is doing the breakout, in case if you want to buy this stock, आप तो कई बार मुझसे पूछोगे कि ये स्टॉक ब्रेकआउट हो रहा है, शैल आई बाय और नॉट। अगर देखो डाउन ट्रेंड है तो यूजुअली बैट मत करो, फिर भी अगर आपको करना ही है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि आपको सपोज आपको लगता है कि नो मे बी दिस, बिकॉज देखो स्टॉक को ऊपर आना है तो डाउन ट्रेंड से आएगा, ऐसा तो है नहीं कि सीधा ही पहले यू विल वेट फॉर दिस लेवल्स एंड देन यू विल बाय। तो इफ़ यू आर बाइंग दिस स्टॉक तो यू विल बी लिटिल बिट कॉशियस, आपको रहना है एंड यू हैव टू कीप योर स्टॉप लॉस द ब्रेकआउट कैंडल। आपका जो कैंडल, आप सपोज यू आर बेटिंग ऑन दिस कैंडल, तो इसका जो लो होगा दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस। वाई दिस शुड बी योर स्टॉप लॉस, जैसे मान लो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये ऊपर जाएगा, तो दिस इज अ ब्रेकआउट कैंडल। अगर ये ब्रेकआउट कैंडल ही फेल हो रही है, इसका मतलब आपका डाउन ट्रेंड चैनल कंटिन्यू है, तो यू हैव टू एग्जिट विद द लो ऑफ दिस कैंडल। ये तो आपको सिस्टम में डाल ही देना है। क्लियर है? अगर वो ट्रू ट्रेंड होगा तो आपका ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है वो कभी ब्रीच नहीं करेगा। अगर वो ट्रेंड नकली है तो वो जानबूझ के ब्रेकआउट हुआ एंड दैट ब्रेकआउट विल फेल एंड यू विल, इट विल टेक योर स्टॉप लॉस एंड विल गो डाउन। ठीक है, तो ब्रेकआउट कैंडल वाला जो कंसेप्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर अभी डाउन ट्रेंड ही है इसमें। एक वीकली में पीएनबी अच्छा लग रहा है मुझे, पीएनबी हाउसिंग। This is a PNB housing chart. So what you can see in this, that this is in a downtrend. Not a single time the stock has given the box breakout when the stock is in downtrend, and not a single time there is a break in RSI. This is the first time the RSI is breaking out, and you can see the last 3 days of volume that is coming above the average. पहले मंथली से चेक करोगे आप कि क्या हो रहा है। मंथली में द स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया अगेन बॉक्स पे एट 10-20 EMA बिकॉज द ओवरऑल मार्केट सिनेरियोज आर नॉट गुड एंड अगेन बाउंसिंग बैक फ्रॉम द बॉक्स सपोर्ट। वीकली में देखोगे तो या द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड एंड द क्रॉस ओवर हैपेंड। ओके, वेरी गुड। एंड इफ यू सी द वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स आर एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है लास्ट तीनों वीक्स के अंदर। नाउ यू हैव टू मेक द पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन तो आपकी यहीं पे हो जानी चाहिए थी व्हेन द स्टॉक इज कमिंग टू द सोल्जर्स। नाउ इन दिस सिनेरियो इफ द स्टॉक्स, यू हैव टू सी द बिहेवियर ऑफ द स्टॉक्स। सपोज आपका पेरेंट इंडेक्स गिर रहा है लेकिन ये स्टॉक कम बिहेव कर रहा है, देन यू कैन मेक द पोजीशन अराउंड नियर द सपोर्ट ऑफ द सोल्जर्स। Okay, this is how the fractal work. Actually fractal is nothing, it will give you the stocks on a daily basis or weekly which are giving the box breakout. ठीक है, now I am going to tell you about the importance of the bigger time frame.
let me share some PSU stocks with you. This is PFC, Power Finance Corporation. You can see in this stock on the monthly chart. This is monthly chart because देखो monthly chart जो होते हैं they never lie, और बहुत हल्का सा झूठ बोलेंगे कभी कभार, but they never lie usually. So here is a breakout, but at this monthly breakout, not a single time this stocks enter into the zone of 70 on the monthly chart. I want you to note down one thing. If the monthly chart is entering into the 70 zone, that stock is not going to stop at least 2x before 2x. ठीक है, आई रिपीट, यूजुअली बोल रहा हूँ मैं, वैसा नहीं है। देखो स्टॉक मार्केट में पहले एक चीज समझ लो, 1+1 कभी भी 2 नहीं होगा, ठीक है। समटाइम 1+1 इक्वल टू 3 एंड समटाइम 1+1 इक्वल टू 1 ओनली। तो stock market is just not like complete max because 1+1 always 2, sometime it will be 2.5, sometime it will be 1.5. Okay, so usually if your RSI, monthly RSI is entering into the zone of 70, that stock stabilize after 1 50-60% का रिटर्न तो वो एटलीस्ट मिनिमम देता है, और समटाइम द स्टॉक विल गो अप 5x 6x 7x और 10x, मल्टीबैगर भी आप पकड़ सकते हो इस स्ट्रेटेजी से। तो अब यहाँ पे आप देखो, इन दिस टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम द स्टॉक इज एंटरिंग इनटू द जोन ऑफ 70 RSI। यहाँ पे आपका ऑल द सोल्जर्स आर अलाइंड एंड दिस इज फॉर्मिंग योर सुपर जिद्दी पैटर्न। व्हाट इज सुपर जिद्दी पैटर्न? जिद्दी पैटर्न जो आपको समझाया यहाँ पे ये होता है कि द स्टॉक्स मूव द साइडवे एंड वंस दिस मेट विद द सोल्जर्स द स्टॉक्स गोज अप लाइक दिस। सुपर जिद्दी क्या होता है कि जिसके अंदर सोल्जर्स, किंग नॉट वेटिंग फॉर द सोल्जर, वो थोड़ा थोड़ा तो फिर भी चलता रहता है, सोल्जर्स को बोलता है तुम लोग जल्दी आओ, मैं तो और चलता रहूंगा, ठीक है। तो जिद्दी का थोड़ा एक टॉप वर्जन मान लो, दैट इज सुपर जिद्दी पैटर्न। तो इन दिस द इंस्टेड ऑफ लाइक दिस द स्टॉक विल स्टार्ट मूविंग एट ए स्लाइट एंगल। इसमें एंगल ऐसा था, इसमें थोड़ा सा स्लाइटली एंगल आपका ऐसा हो जाएगा, एंड वंस इट मीट द सोल्जर, तो इफ यू आर गेटिंग सच टाइप ऑफ इंडिकेशन, तो इट इज कंपेयरिंग मोर प्रोन टू गिव द गुड रिटर्न्स। तो आप इस 100 पोजीशन के आसपास आपने पोजीशन बनाया, एंड यू कैन सी दैट द स्टॉक इज फॉलोइंग ए गुड पाथ अंटिल एंड अनलेस आपका मंथली में 10 क्रॉस नहीं होता, यू कैन एग्जिट दिस पोजीशन एट दिस पॉइंट। तो दिस इज ऑलमोस्ट 4x and 5x money within 1.5 in your of time. जस्ट आस्क एनी ट्रेडर, कोई भी जिसने 4x पैसा बनाया हो 2023 से 24, किसी का 400% रिटर्न हो, दिखा देना। किसी भी म्यूचुअल फंड का दिखा देना, किसी भी ये अपना PMS वाले का दिखा देना, किसी का भी दिखा देना। तो द थिंग इज, दीज पीपल्स आर नॉट स्मार्ट, यू आर स्मार्ट इनफ। द ओनली थिंग इज, आप लोग अपना एनर्जी दूसरों को दे देते हो। आप लोगों को लगता है कि ये सब जानता है, मैं नहीं जानता। आप लोगों को लगता है कि मैं गोल्ड के बारे में जानता हूँ, मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना आप जानते हो। द ओनली थिंग इज, आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ कि मुझे पता है कि इफ आई गो रॉन्ग व्हाट आई हैव टू डू। बट व्हाट्स योर इशू इज, आप लोगों को कन्विक्शन पूरा मेरे पे है, आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ, एंड दैट इज अ completely destructive mentality. सिंपली आपको क्या करना है कि इफ द थिंग्स आर वर्किंग इन माय डायरेक्शन, इट्स ओके। तो आपने ये स्टॉक लिया होता मंथली ब्रेकआउट पर और आप अपना जॉब कर रहे हो मस्ती से, तो डेली के जो चाउज हैं, डेली में एक्सीडेंट हो रहा है, इसमें भी होगा, किसी दिन वो -5 भी गया होगा, -7 भी गया होगा। सिंपली वो द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन द वीकली और मंथली चार्ट, वो चुपचाप आपको बैठा है 400% का रिटर्न बना के दे दिया उसने, ठीक है। ही बीट एवरी इंडेक्स, एवरी PMS, एवरी फंड मैनेजर। तो आपको समझ में आ रहा है मनी का एक्चुअल गेम है। बट अगर मान लो सपोज ये स्टॉक मैंने यहाँ दिया होता, इवन दो आई ऑल्सो नॉट मेक 400% इन दिस स्टॉक और इन द दैट दिस फाइनेंशियल ईयर। बट अगर आप बताओ, बीइंग एन फिन इन्फ्लुएंसर, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको एक स्टॉक दे दूँ, कह दूँ कि 1 साल होल्ड करो, तो क्या हम लोग मिल पाते? नहीं मिल पाते ना। So that is what the fin influencers are doing on social media. If you don't suggest to the stock, the communication between interaction between will be quite less, and everybody is interesting in making the quick money. और आप बताओ, एक साल में 400% क्या क्विक मनी नहीं है? जस्ट बाय सिटिंग आइडली यू कैन मेक अगर 400 या 200 या 100% रिटर्न भी, so then that is quite good comparing to the daily doing such type of activity. Daily activity of an influencer will uh, मतलब capture your mind to understand that they know much more than what we actually do, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिकॉज अर्लियर इन माई अर्लियर stages I also used to think in the same way that these people have the edge of that they are not doing the job, they can do the analysis whole time, and I am doing I am actually मैं आपको मेरा स्टोरी बाद में बताऊंगा। आई एम इन ए PSU, तो मुझे लगता था कि यार आई एम गिविंग माई 8 to 10 hours टू द कंपनी, देन हाउ आई कैन
beat this, तो why I should not enter into this stock market for a full time. बट मुझे लगा अगर मैं फुल टाइम जाऊंगा तो इट विल गिव मी द डिसएडवांटेज ओवर द एडवांटेज, ठीक है। बिकॉज टू मच, ये तो आपको बुक के अंदर मिल जाएगा, डार्विस बुक के अंदर बहुत क्लियरली लिखा है, व्हेन ही शिफ्ट हिज ऑफिस टू दिस एक्सचेंज, तो वहाँ पे उसको लॉसेस होना स्टार्ट हो गया था, एंड ही उसको पता नहीं चला था व्हाई आई एम मेकिंग द लॉसेस। बाद में उसको मालूम पड़ा कि द चाउस, द न्यूज़, लोगों की टिप्स और ये इसकी वजह से जो उसकी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन जो चीज़ थी वो हट के वो कहीं और अपना काम करने लगा था, एंड फॉर दैट रीज़न उसका जो एक्यूरेसी एंड एवरीथिंग ड्रॉप विद ए गुड पॉइंट। तो दिस इज हाउ व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द बिगर टाइम फ्रेम यू कैन मेक ए वेरी गुड मनी। तो आपको इसका सिंपली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हाउ टू स्पॉट द बिग रनर स्टॉक, सिंपली जो आपको मैंने बोला वीकली के ऊपर, व्हेन द वीकली ब्रेकआउट इज हैपनिंग द वॉल्यूम इज 2x, राइट। लेट मी टेक किसी बैंक का एग्जांपल ले लेता हूँ। वीकली चार्ट में आपको आना है, सिंपली ऑन वीकली चार्ट इफ यू आर गेट, देखो अब एक भी बार आप यहाँ से यहाँ तक देखो, नॉट ए सिंगल टाइम ब्रेकआउट हैपन, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस वीकली ब्रेकआउट एंड आर एस ए हैपनिंग। तो योर सिनेरियो क्या हो रहा है, आपका बॉक्स ब्रेकआउट, ऑल योर सोल्जर्स आर अलाइंड, एंड दिस वॉल्यूम इफ यू सी, दिस इज द 2x 3x वॉल्यूम्स, राइट, एंड योर आर एस आई इज एंटरिंग इन टू द जोन ऑफ दिस 12 rupees to 36, almost 3x money within 2 months. What else you want? And after you see the breakout, Jitti pattern again, this type of pattern is forming. सेम थिंग आप कोई भी स्टॉक के अंदर पुराने स्टॉक्स में ट्राई करो, बिकॉज यू विल नॉट गेट मच स्टॉक्स इन सच सिनेरियो। और दिस इज RVNL, सेम थिंग, दिस इज योर which pattern, this is your Johnny Lever pattern, right? Not much space left at this point, this is a breakout, RSI breakout, volume more than 2x, and simply you have to hold the stock. तो बिगर टाइम फ्रेम पे आप जब चीज़ें देखोगे तो इट विल बी मोर क्लियर, डेली में आप देखोगे तो यू विल गेट द चाउस, राइट। ठीक है, सिंपली आपको ऐसे जॉनी लीवर पैटर्न पे फोकस किया एंड वो ब्रेकआउट किया, यू हैव टू होल्ड द स्टॉक, सिंपली सिंपल मनी। यहाँ पे सेम थिंग इज हैपनिंग, सेम थिंग इज हैपनिंग, सेम थिंग इज हैपनिंग। यू आर बैटिंग ऑन अप ट्रेंड स्टॉक, राइट, बट व्हाट इफ, जैसे कहीं आप देखा होगा द पीपल आर सजेस्टिंग कि राइट नाउ रेलवेज, ठीक है, ये हो गया वो हो गया, जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होगा यू डोंट बैट ऑन एवरी राइज। हो सकता है 5-10% का मूव है, बट यू हैव टू वेट फॉर द कॉन्जिक्यूटिव मूव, एटलीस्ट दिस चैनल शुड ब्रेक। अदरवाइज आप करोगे बैट तो ओवरऑल ट्रेंड इज नेगेटिव, द जो रिवर है वो नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, एंड इफ यू वांट टू स्विम अप स्ट्रीम देन यू विल बी इन ए ट्रबल। ओके, so this is time frame selection. Now the thing is sector analysis and the macros. I don't want to make this video big because क्या होगा फिर आप पूरा कुछ छोड़ दोगे, तो I am going to take this in the part module 1 के ही part 2 के अंदर हम लेंगे कि how to do the sector analysis and the मैक्रोज में कैसे आपको डॉलर कॉपर प्राइस, आपने देखा होगा कहीं पर आई टॉक अबाउट द कॉपर प्राइस, तो वाई द कॉपर प्राइस इज इम्पोर्टेंट, हाउ द बिटकॉइन शोज, एक्चुअली व्हाट आई हैव डन इज एक्चुअली कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द न्यूज़ की व्हाट इज हैपनिंग, लिक्विडिटी का इशू है तो मैं बिटकॉइन चेक करता हूँ, इकोनॉमिक स्लो डाउन या ये रिसेशन दिखता है तो मैं कॉपर प्राइस चेक करता हूँ। तो आई हैव कपल्ड वन स्टॉक और वन एलिमेंट या कुछ भी आप मान लो कमोडिटी विद द न्यूज़, तो आई डोंट नीड टू चेक द न्यूज़ और द कमेंट्री ऑफ ईच एंड एवरी पीपल, दैट same economic parameter will tell me whether this is true or not, because you know in this current scenario the न्यूज़ सब टाइप का है, कौन सा सच है कौन सा झूठ है वो आपको पता करना मुश्किल है। वन मोर पैटर्न आई वांट टू डिस्कस विद यू, आप इस साइट में जाना, यहाँ पे आपको लिखना है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में फॉर एग्जांपल जैसे बजाज फिनेंस है, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस मॉर्निंग स्टार, लेट मी टेल यू फर्स्ट, व्हेन द स्टॉक इज इन अ डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड चल रहा है, देन वन कैंडल विल कम एट दिस पॉइंट, ठीक है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आपका बनेगा, दिस शोज द ट्रेंड रिवर्सल, मतलब त्रिशूल जैसा शेप बन जाएगा, राइट, देन द ट्रेंड विल स्टार्ट मूविंग अप। अब वो ट्रेंड कितना ऊपर जाएगा, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पार्ट, दैट थिंग विल बी कम विद द लेंथ ऑफ दिस कैंडल, ये ग्रीन कैंडल जो है इसकी लेंथ बताएगी आपको कि अप ट्रेंड कितना चल सकता है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू यूज ए इंची टेप,
ठीक है। इंची टेप मतलब व्हेन यू आर कमिंग विद द रेड कैंडल्स डाउन, आपको ये देखना है कि जो बाउंस बैक कैंडल्स है उसका जो लेंथ है वो कितना स्ट्रांग है कंपेयर टू दिस। तो फॉर एग्जांपल लेट मी, इधर आप इधर देखते हैं। यहाँ पे आप ये चीज़ देखो, यहाँ पे वी आर इन द डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये डिसीजिव कैंडल है एंड दिस इज द वोल कैप्चर कैंडल, नॉट एग्जैक्टली द मॉर्निंग स्टार बट सॉर्ट ऑफ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसने पूरा का पूरा एक कैंडल ईट कर लिया। लेट मी ड्रॉ एक कैंडल, छोड़ो ना, ये रेड कैंडल है, यहाँ पे विक बना और ये कैंडल है एंड देन वन ग्रीन कैंडल इज लाइक दैट कैंडल कैंसिल आउट दिस कैंडल एंड दिस कैंडल, दिस शोज ए क्वाइट स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे आप देखोगे at this point this is a red candle, right? This is a decisive candle. Decisive matlab both buyer and sellers are fighting, and this is how the reversal comes. This is the morning star, and from this point the uptrend started. Okay, तो सेम वे मॉर्निंग स्टार बनता है, ऊपर आपका इवनिंग बनता है कि ग्रीन कैंडल्स चलेगी, देन रेड डिसीजिव कैंडल एंड देन अगेन ए रेड कैंडल, तो इट विल शो यू द डाउन ट्रेंड विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, ठीक है। नाउ लेट मी शेयर, वैसे तो मैं मैक्रोज में बात करूंगा, लेट मी डिस्कस अबाउट दिस गोल्ड। आपने एक मेरा ट्वीट देखा होगा कि मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली टॉप पे बोला था कि इट्स टाइम टू सेल द गोल्ड। मेरे वाइफ का एक मतलब है, मैं मीमी बना के एक डाला था। द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज द गोल्ड इज, देखो अभी गोल्ड का चलना तय था। द रीजन इज गोल्ड इज इन एन अप ट्रेंड, ओके। एंड व्हाट यू कैन सी इज दैट, यहाँ से आप देखोगे दिस इज अ बॉक्स ब्रेकआउट जिद्दी, देन अगेन 10 एमा, देन गोइंग अप, देन टेकिंग द सपोर्ट साइडवे, देन अगेन ब्रेकआउट, देन 10 एमा, देन गोइंग अप। लास्ट लेग इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, तो दिस मूव्स आर टू स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द ओवरऑल मार्केट। तो मुझे लगा था कि जैसे बोला ना मैंने आपको, लास्ट लेग जो होता है वो हमेशा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग मूव्स आ रहे थे बैक टू बैक। एंड फॉर दैट रीजन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, इफ यू आर गेटिंग बैक टू बैक मूव्स एंड सॉलिड मूव्स, देन इट्स टाइम टू बुक द स्टॉक्स। और भी कुछ लॉजिक्स हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा, वो दैट विल कम इनटू द आरएसआई पार्ट, कि हाउ टू check the divergence in RSI and everything. So for that reason, I was so much sure that the gold will fall from this point. ठीक है, तो दिस इज द मॉर्निंग स्टार हैमर कैंडल। नाउ लेट मी शेयर you one one more candlestick pattern at this point. I need to find out the just like in Vadilal, what you can see is that this is a box breakout happened, and after this consecutive move, again taking the support, again going back to this channel. Why? The reason is, you will simply get the reason on the monthly chart. The stock is just forming, just taking this 20 support, box support, and again start moving up. Weekly chart में और clear picture आएगा that this stock is in a sideway, and this is the first breakout, and this is how the stock is going up. If you draw a channel on the RSI, you will get it know that here at this point your RSI breakout happened. Why I bet on NSL? The same concept. This stock was in a downtrend, and I know when this stock is in uptrend, it will remain in uptrend, और जब ये downtrend में आता है तो downtrend में आता है। तो this is mostly with the holding companies, right? तो यहाँ पे आप देखोगे क्रॉस ओवर हो रहा था, यहाँ पे फर्स्ट टाइम बॉक्स ब्रेकआउट हो रहा था, तो दिस इज वेयर आई मेड माई पोजिशन। I am holding the stock. This is then what I usually do is I just keep on watch whether the stock is forming which type of pattern. So at this point the stock is forming the humble pattern. Once it again touches the box, then again the stock is trying to do the breakout. And this is the first breakout, and this is the second breakout. Let's see what happened today. I don't feel that this stock will face much heat. Although I am still holding this stock because actually I am betting on the trend. ठीक है, तो सिर्फ एक कैंडल के लिए मैं बैट नहीं करता। ड्यूरिंग द डाउन ट्रेंड यू विल फाइंड नॉट ए सिंगल टाइम द स्टॉक हैज गिवन द ब्रेकआउट, एवरी टाइम 20 एमआ को टच करके तो आपका स्टॉक नीचे गिरा, तो यहाँ पे आपका ट्रेंड चेंज हो चुका। इट्स टू डिफिकल्ट कि यहाँ से कहना कि डाउन ट्रेंड फिर से स्टार्ट हो। आई थिंक दिस इज नॉट ए चांस, बट इन स्टॉक मार्केट एनीथिंग कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ let me sharing you one more pattern that is called in my terminology that is called पिचकू कैंडल। पिचकू कैंडल मतलब such type of body will come, and body क्या होता है, जब कोई कैंडल होता है तो ये उसकी बॉडी होता है, ये ऊपर इसके विक होती है, नीचे विक होती है ऐसे, ओके। तो पिचकू कैंडल में बॉडी जो होगा वो छोटा सा होगा, एंड देन यू विल फाइंड ए लॉन्ग विक फ्रॉम द डाउन साइड, जस्ट लाइक दिस कैंडल यू कैन सी, तो दिस टाइप ऑफ कैंडल इज देयर। तो इसको हम बोलेंगे
पिचकू कैंडल, राइट? इन टेक्निकल टर्म इसका कुछ नाम होगा, वो आप देख लेना। ठीक है, इसको पिन बार कैंडल भी बोलते हैं, या कुछ लोग हैंगिंग मैन वो सब भी बोलते हैं। तो इफ दिस इज पिचकू कैंडल, इफ दिस कैंडल इज फॉर्मिंग, दिस यूजुअली गिव यू द इंडिकेशन। एक्चुअली बनती कैसे, आप यू नोट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। Intraday, what happened in this is actually the stocks goes down, right? But the big players enter into the stock and take the close to this point, right? So matlab big players are interested to buy this stock at this point, and for that reason the stock is going up. Same thing if ulta pitchko is forming. Okay, this pitchko is usually formed on the top, and this is a sell signal, because if such type of candle is forming, it means intraday the stock will go up, but now the seller start booking the profit, and for that reason the closing come to this point. For example, इस stock में आप देखोगे you will get a two 2 days 2 week आपको दिख जाएगा, and with a good volumes. आपने पूछा था कि वॉल्यूम का कलर वो मैटर करता है, ग्रीन रेड कलर वॉल्यूम का मैटर नहीं करता है, द ओनली थिंग मैटर करता है उसका लेंथ। ठीक है, इफ योर कैंडल इज स्मॉल, ठीक है, आपका कैंडल जो है उसका बॉडी बहुत छोटा सा है, एंड देर इज अ गुड वॉल्यूम, what exactly it shows, देखो actually volume is a combination of both buying and selling, so it's too difficult to find out whether it's a buying call or a selling call. But if your body is uh, low and your volume is high, it shows that this is a selling thing. अब कैसे पता करना, सिंपली आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। इफ योर बॉडी इज अलाइंड विद द वॉल्यूम, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, बॉडी का साइज भी ग्रीन है और अच्छा खासा क्लोजिंग है, वीक नहीं है, तो दिस इज सिंपली ए accumulation call, right? Like at this point, at this point, at this point, when the body is in a red condition and the volumes are big, that is simply a call that the big players are selling. When the body is small but there is a long wick upside and a good volume is there, this is a selling volume. ठीक है, ये selling volume है, मतलब लोगों ने ऊपर माल करके इंट्राडे उसको बेच दिया है। अभी एक ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि यही कैंडल अगर टॉप पे बनती है तो इट गिव यू द सेल सिग्नल, बट इफ द सेम कैंडल इज फॉर्मिंग ऑन द बेस, दिस इज ए बुलिश कैंडल। क्यों? The reason is, when this type of candle form on a base, it shows that the big players are buying, but the people, retailers, those who are stuck in the stock, they will start selling. तो ये जो selling volume है, this selling volume is not because of big players. This selling volume is for retailers who are stuck at the previous level. तो वो अपने लेवल का जैसे वेट किए, they sold, तो again you will get 1 2 candle and again the trend will do the breakout. So usually at the base you will get this type of candle. Although I am going to share lots of example with you एंड मैं ड्रॉ करूंगा, तो डोंट वरी इफ यू आर नॉट गेटिंग एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से। कोई अच्छा एग्जांपल मिलता है तो, जैसे आप ये देखो, यहाँ पे ये विक कैंडल है सेम, ठीक है, राइट नाउ द वॉल्यूम्स आर टू गुड, तो यहाँ पे दिस इज अ सेलिंग वॉल्यूम। अभी आप विक देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे दिस इज अ डाउन विक, राइट? तो दिस इज वेयर द बिग प्लेयर्स आर इंटरेस्टिंग, और यू कैन सी दैट द मॉर्निंग स्टार इज फॉर्मिंग, तो द रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड विल कम इन दिस वे। ये विक वाला मिलता है ना, तो मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मली जैसे ये हो गया ना, इस टाइप की विक की बात करो, इफ द विक you will find in the base. Okay, it is giving you the indication that the big players are buying and the small players selling, and trend will soon change in uptrend. But such type of candle if you find at the top, that means big players are selling and the small players are retailers जो हैं वो buy कर रहे हैं for the news। यहाँ पे न्यूज़ चल रहा होगा स्टॉक का, इस न्यूज़ में कुछ बड़ा होने वाला ही है, तो retailers are buying and the big players are selling. And when such type of thing is happening on the base, that means big players are buying but the retailers are selling. For that reason ये सेलिंग वॉल्यूम आता है, धीरे धीरे एक दो कैंडल के अंदर वो चीज़ आके रेक्टिफाई हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपके साथ जो कैंडलस्टिक पैटर्न शेयर किया, दैट इज हम्बल, जिद्दी, जॉनी लीवर, ठीक है, देन मॉर्निंग स्टार, एंड देन दिस पिचकू एंड उल्टा पिचकू। ठीक है, these are the only pattern we are going to discuss in this. No more patterns, no need to remember web or ye or wo. These patterns are sufficient. If you work on only these three pattern, humble, jiddi and johnny lever pattern, that is quite enough.
मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ इन 3 पैटर्न्स पे, एक कहीं कोई स्पेशलिस्ट है वो जिद्दी का स्पेशलिस्ट है, कोई है जो हम्बल का स्पेशलिस्ट है, तो उनकी आईज सिर्फ चार्ट देख के पता कर लेते हैं कि इस टाइप ऑफ पैटर्न इज एक्चुअली फॉर्मिंग, तो सिंपली दे बेट बिग अकॉर्डिंग टू दिस। उसके लिए होना क्या चाहिए, ओवरऑल मार्केट सिनेरियो थोड़ा सा स्ट्रांग हो या थोड़ा साइड वे हो तो भी चलेगा, बट दे यूजुअली डोंट बैट व्हेन द ट्रेंड्स आर नेगेटिव। ओके, तो पेशेंस वाली चीज जब आप में आ जाएगी ना, तो यू विल नॉट गेट इन द फोमो कि चलो आज बाय करना ही है, मैनी डेज विल गो ब्लैंक कि ठीक है कुछ भी नहीं किया। ओके, तो आई थिंक now sector analysis and the macros are pending in this module 1, so that I will record in some time, matlab today only, and I will share with you. So till that time you just watch this part, and if you have any doubts you can ask. एंड एट द सेम टाइम वी विल हैव द वेबिनार्स ऑन, मतलब वीकेंड्स पे भी होगा या फिर अपन सैटरडे संडे कभी भी ले सकते हैं, ऐसा तो कोई सिनेरियो नहीं है, घर जैसी ही बात है, कभी भी ले सकते हैं, और यू कैन आस्क मी द डाउट एट दैट टाइम ऑल्सो, तो नॉट टू वरी, जस्ट जस्ट बस आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ चलना, पीछे मत रह जाना, बिकॉज अगर पीछे रह जाओगे ना तो थिंग्स विल गोइंग कॉम्प्लेक्स विद द टाइम। ओके, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, वी विल डिस्कस दिस मैक्रोज इन मॉड्यूल 1 पार्ट 2।